الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان اعظام اور مدرسہ ابراہیم کے طلباء، آپ سب کا جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہونا طے پایا ہے، الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی ہے. ہم بلا کسی تاخیر کے اب اپنے پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر کام جو اللہ کے نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ بے فائدہ اور بے سود رہتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اپنے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے ابراہیم کے طالب علم فہیم احمد شریف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات قابل اقدس ہے، قابل احترام ہے، تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو لہذا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے اسماء فلک اور یسرا مریم دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کا دین ملا. تینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. محترم صدر جلسہ، معظم ائمہ مسجد اور مدرسہ ابراہیم کے طلباء اور تمام پیرنٹس، اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دینی نسبت کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے. یہ جلسہ ہمارے مدرسے کے بچوں کی ہمت افزائی اور بہت سالوں سے جو مسجد کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، جو کہ ہمارے امام اور ہمارے کمیٹی ممبر جو کہ 40 سال سے یا 20 سال سے 50 یا 30 سال سے جو بھی کمیٹی ممبر اور ہمارے ائمہ جو بھی خدمت کرتے آئے ان کے لیے جلسہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں صدر جلسہ مولانا محمد عمیر صاحب کاشفی، محمد ابو بکر صاحب کاشفی اور مہمان بالخصوص ڈاکٹر اسرار شریف صاحب پرنسپل نیو کالج، دیگر آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ 2021 سے شروع ہوا. مطلب میرے والد صاحب، آپ تمام محلے والے جانتے ہیں، میرے والد صاحب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 40 یا 50 سال غلاموں سے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اسی کا مسجد کے وائس پریزیڈنٹ رہتے ہوئے انتقال کر گئے سر. اور 2020 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے ان کے نام سے مدرسہ کھولنے کی ہدایت دی. اور جب سے الحمدللہ یہ مدرسہ چالو ہے اور اس مدرسہ میں 3 بیچ سے چلتے ہیں. مغرب کے بعد ایک بیچ آتا ہے، پھر عشاء کے فوراً بعد ایک بیچ چلتی ہے، اور آخر میں 9:30 کے بعد جو بھی آفس کو جانے والے اور کالجز کو جانے والے 9:30 کے بعد جو ہے عمر والوں کے لیے بھی الحمدللہ مدرسہ قائم چل رہا ہے. میں پھر ایک بار صدر جلسہ اور دوسرے تمام حاضرین کی شرکت پر اپنی طرف سے اور ہمارے مدرسے کے استاد حافظ مولانا انور شریف صاحب کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور اللہ آپ کی آمد پر حد درجہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس جلسے کو قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. جناب پرنسپل صاحب نیو کالج دامت برکاتہم اور دیگر ائمہ مساجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بیٹھ جائیں. آپ کے کھڑے ہونے سے ہمارے پیروں میں درد ہو رہا ہے. آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے بولیں گے تو مناسب رہے گا. آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کی باتیں سننا ہے. اچھا، سن کر کرنا کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں تک اس بات کو لے کر جا کر پہنچانا. اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو اسی طرح ہمارا یہاں آنا بھی کسی مقصد کے تحت بے بنیاد نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس پر ہم قائم رہیں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا، اور ان معصوم بچوں کے ذریعے ہمیں خوشی کا موقع عنایت فرمایا کہ آج ان بچوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے کلام پاک کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے جب ان سے بات کرنا شروع کی، کلام کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے جو وحی ان پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، پڑھیے، پڑھو. تو پڑھنے سے ہی پہلے وحی نازل ہوئی،
اور جو پہلی وحی نازل ہوئی جس میں 5 آیتیں نازل ہوئی، اور 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے، پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نام کے ساتھ اے نبی آپ تلاوت کیجیے. جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہاں پر یہ بات رکھی اقرأ وربک الاکرم. جو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو باوقار بنائے گا، ان کو مرتبہ عطا کرے گا، ان کو عزت والی زندگی نصیب کرے گا. وہ معاشرے میں ایک بلند انسان ثابت ہوں گے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں. پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر میں پڑھی جا سکتی ہے. جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں، جو بچے قرآن شریف ختم کر رہے ہیں، ان کا کتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے. لوگ ان کے مقام کو سمجھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ان بچوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. آگے بڑھ کر ان کو خود سلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم آقا کا قرآن ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا جو بھی اس قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی مکرم بن جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی مکرم ہے، کریم ہے. تو یہاں جو انسان قرآن کو پڑھے گا، اللہ کی بات کو سمجھے گا، تو وہ اس مقام کو پہنچے گا. جب قرآن کو نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تو وہ اللہ تک کہاں پہنچ پائے گا. جیسا کہ کہا جاتا ہے، عربی کی کہاوت ہے الانسان تحت الکلام. انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کے انداز کو رکھ کر اگلے والا، سامنے والا یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے. تو اس کی زبان، اس کا لہجہ یہ بتا دیتا ہے. تو آدمی پہچان لیتا ہے. کاش کہ ہم اللہ کے کلام کو کبھی پڑھتے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو ہم اللہ کو سمجھ پاتے جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، تو پھر ہم عمل کر پاتے جیسا کہ عمل کرنے کا طریقہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہر چیز رسمی ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز رسمی ہوتی جا رہی ہے، دکھلاوا ہوتا جا رہا ہے. بظاہر دکھنے کو تو سب مؤمنین نظر آ رہے ہیں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ دائرہ اسلام سے اپنے عمل کے ذریعے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ایک اور جگہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. قرآن کو تلاوت کرنے کا جیسا اس کا حق ہے، اس طرح اس کے حق کو ادا کیا جائے. ایمان لانے کو بعد میں کہا گیا، ایمان کی بات بعد میں آئی ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان.
الرحمن، بہت کریم رب نے، بہت مہربان رب نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد قرآن کو سکھایا. لیکن پیدا ہونے کو بعد میں رکھا گیا. علم کے سیکھنے کو پہلے رکھا گیا. اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یعنی جو انسان علم حاصل نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کر پائے گا، گویا کہ وہ ویران گھر کے مانند ہے، گویا کہ وہ زندہ لاش ہے، دھرتی پر بوجھ ہے. کیونکہ نہ اس نے اللہ کے کلام کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا. جب وہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا دھرتی پر رہنے کا کوئی مطلب نہیں. وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس طرح اس کو تلاوت کرنا چاہیے. محترم بزرگوں، دوستو، اب تھوڑا سا غور کریں. آج کل ماشاءاللہ تجوید کا ایک اچھا نظام ہے، دیکھا جا رہا ہے. لیکن کچھ سالوں پہلے جنہوں نے جو تلاوت کی ہے عوام میں، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تجوید کی بہت وہاں پہ کمی محسوس ہو رہی ہے. آج ماشاءاللہ وہ لوگ بھی جوک در جوک آ کر حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے رنو تجوید کو سیکھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے تعلق سے علماء اکرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا اپنے محلے کے عالم دین سے معلوم کریں، یا تو لکھنے جلی ہوگا یا تو لکھنے خفی ہوگا. ظاہر سی بات ہے، لکھنے جلی ہوتی کیا ہے؟ بہت مختصر سے بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام تو بچوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہے. لیکن اہمیت کو بتانا ضروری ہے، اس مجلس کی اہمیت کو بتانا بہت ضروری ہے. لکھنے جلی میں 5 چیزیں آتی ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ایک حرف سے دوسرے حرف کو بدل کر پڑھ دینا. اب بیان تو بہت سنے ہوں گے، اس اہمیت کو بھی سمجھ لیجئے. معمولی سی بات ہے جس کو لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ الحمد کی جگہ اگر الحمد پڑھ دیا جائے تو معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے. اور لکھنے جلی کا جو حکم ہے وہ حرام ہے. اس طرح تلاوت کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ حرف کا مخرج بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جن کو پیٹ میں درد تھا. ان صاحب نے ہسپتال کا رخ کیا، ڈاکٹر سے ملاقات کی اور بات رکھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا، بھائی آپ لیب جا کر ٹیسٹ لے کر کے آ جاؤ، مطلب یورین ٹیسٹ لے کے آ جاؤ. اور وہ صاحب بھی گئے، لیب گئے. وہ کچھ باکس وغیرہ دیتا ہے، ڈبہ وغیرہ، اس میں اس کو لے کر سامنے جا کر وہ پہنچ جانا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کی جگہ پر. تو وہ صاحب گئے اور دیتے ہوئے یہ کہا، آپ اس یورین کو ٹیسٹ کیجئے. حالانکہ وہاں کہنا کیا چاہیے تھا؟ ٹیسٹ کیجئے. تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کچھ کھینچ دیے لفظ کو تو وہ ٹیسٹ کی جگہ ٹیسٹ ہو گیا. تو سمجھنے والے نے سمجھا کہ اس کو کتنی مستی ہے کہ یورین ٹیسٹ کرنے کو کہہ رہا ہے. ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا، اس میں معنی کہاں کا کہاں ہو گیا. تو قرآن کے معانی و مفاہیم ہمارے پڑھنے کے انداز سے کتنے بدلتے ہوں گے. رب کریم اس کے باوجود بھی ہمیں معاف کر رہا ہے. تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اور اسی طرح
تربیت کے تعلق سے مجھے ایک بات کہنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے. آج کل پیرنٹس کا بہت شکایت رہتا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے, عمل نہیں کرتے, نماز نہیں جاتے, ہمیں انہیں اٹھا کر بھیجنا پڑتا ہے, وہ خود سے اٹھ کر نہیں جاتے. مدارس میں ایسی تربیت کی جائے کہ وہ خود سے اٹھیں, وضو کریں, تہجد بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں اور مسجد بھی جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور اولیاء بن کر رہیں. یہ ان کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. بچے حکم ماننے سے زیادہ, بات سننے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو بھی ختم کرنا چاہوں گا. جیسا کہ ابھی عام ماحول ہے, عام زمانہ ہے, رمضان کا مہینہ نہیں ہے. اب ان دنوں میں بچوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نماز جائیں, تلاوت کریں, مسجد جائیں, مدرسہ جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے, جو ٹی وی گھر میں ہے, والد صاحب یا والدہ اس کو پہلے اس پر شال پوشی کر دیتے ہیں, اس کو پہلے شال پوشی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا رمضان کا مہینہ ہے, بیٹی رمضان کا مہینہ ہے. اور پھر وہ خود اٹھ جاتے ہیں اور وہ خود تلاوت کرتے ہیں, وہ خود ذکر و اذکار کرتے ہیں. گھر کا ماحول ایسا نظر آتا ہے گویا کہ یہی مکہ اور مدینہ ہے. گھر کا اتنا بہترین نظام رمضان میں ہوتا ہے اور بچوں کو اس وقت میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹا آپ نماز جاؤ, بیٹا آپ فجر جاؤ, بیٹا آپ تلاوت کرو, بیٹا آپ عشاء کی نماز جاؤ, سنت پڑھ کے آؤ, وتر پڑھ کے آؤ. کیونکہ وہ بچہ خود وتر کے ساتھ تراوی وتر سب پڑھ کے آتا ہے. جو بچہ مسجد میں 5 منٹ کا وقت نہیں گزار سکتا تھا, رمضان کے مہینے میں وہ بچہ 1.5-2 گھنٹہ مسجد کے اندر وقت لگا کر آتا ہے. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن صرف غیر مکلف بچوں پر نہیں ہے, قرآن مکلفین پر بھی ہے, ہمارے اوپر بھی لازم ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अम्मी अब्बा उसका दो किस इज्जत कर
बिस्मिल्लाह। नंबर 5, 3 साल से पीना। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अल्हम्दुलिल्लाह। सदर मोहतरम, हाज़रीन मजलिस और मेरी दीनी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप लोगों के सामने नमाज के शराइत के उन्वर पर कुछ बात करने के लिए खड़ी हुई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। हाज़रीन, नमाज अल्लाह की इबादत में से सबसे अज़ीम शान इबादत है। प्यारे आका सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन का सतून कहा है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन इस्लाम का सतून है, और जिसने इस नमाज को एहतमाम के साथ अदा किया उसका पूरा दिन महफूज रहेगा, और जिसने इसको अदा करने में कोताही बरती तो गया उसके अंदर का सारा दिन खत्म होकर रहेगा और वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से साफ पता चल रहा है कि नमाज अदा करने ही पर अपने बंदे का मोमिन का मदार होता है। तो जब नमाज इतनी बड़ी अहम की चीज़ है तो हमें चाहिए कि हम इसके तमाम शराइत के साथ अदा करने की, अपने पूरे दिन की हिफाजत करने की फ़िक्र करें। सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना, यानी जिस इंसान का बदन नापाक हो तो वो ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो नहा ना ले, या अगर भी वज़ू है तो वज़ू ना कर ले। नमाज की दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना, यानी नमाजी आदमी के कपड़े गंदे, मैले, फटे पुराने ना हो, बल्कि बिल्कुल साफ़ सुथरे और पाकीज़ा कपड़े में ही नमाज अदा होगी। नमाज की तीसरी शर्त है सतर का छुपाना। मर्दों के लिए नाक के नीचे से घुटनों के नीचे तक का हिस्सा है, और औरतों के लिए चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों कदमों के अलावा पूरा बदन चदर है। अगर इनमें से कोई सा भी हिस्सा खुला हुआ हो तो नमाज अदा नहीं होगी। नमाज की चौथी शर्त है जगह का पाक होना, यानी हम जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ रहे हों हमारे जगह गंदी और नापाक ना हो, बल्कि साफ़ सुथरी जगह में ही नमाज अदा करना। नमाज की पांचवी शर्त है नमाज का वक्त होना, यानी हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, हम उसका वक्त दाखिल हो चुका हो, किसी भी वक्त आने से पहले उसे अदा नहीं कर सकते। नमाज की छठी शर्त है किबले की तरफ रुख करना, यानी हम जहाँ कहीं भी नमाज अदा कर रहे हों हमारा रुख किबले की तरफ ही रहना जरूरी है। नमाज की सातवीं और आखिरी शर्त है नियत करना, यानी कौन सी नमाज पढ़नी है, कितनी रकातें हैं, फ़र्ज़ है या वाजिब, सुन्नत है या नफिल, अकेले पढ़ना इमाम के पीछे, इन सब का नियत रहना ज़रूरी है। तो ये थी ऐसी 7 शर्तें। अगर इनमें से कोई सा भी शर्त भूल गए तो आज नमाज अदा नहीं होगी। अल्लाह पाक से यही दुआ की अल्लाह ताला हम सबको दीन के मसाइल सीखकर अपने अमाल को बचाने की तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? हम सब ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, आप लोग भी चलो, सब मिलकर खेलेंगे। नहीं दोस्त, ये हमारा मदरसा जाने के टाइम है, हम आज मदरसा जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग कौन से मदरसे में पढ़ते हो और वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है? हम लोग करीब मोहिद्दीन स्ट्रीट में मौजूद मदरसा इब्राहिम में पढ़ते हैं और हमको वहाँ कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया जाता है, कुरान के सूरे हिफ्ज़ कराया जाता है और उसके साथ दुआ, सुन्नत, हदीस, अकाईद, मसाइल, सीरत और इस्लामी मालूमात भी सिखाया जाता है। अच्छा, तो अगर हम तुम लोगों से इस्लामी मालूमात के बारे में सवालात करें तो क्या आप लोग जवाब दोगे? इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह की मदद से जवाब देने की कोशिश करेंगे। पूछो जो पूछना। जी, पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछा वो तो जनाब, इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है
जमीन और आसमान और सब चीजों को किसने पैदा किया? हमको चांद, सूरज, जमीन और आसमान और सब चीजों के अल्लाह ने पैदा किया है। रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह देता है। दुआ कौन सुनता है? दुआ सिर्फ अल्लाह सुनता है। जिंदगी और मौत कौन देता है? जिंदगी और मौत अल्लाह देता है। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? हम अपना सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकाते हो। आफिया बहन, क्या मैं आपसे आसमानी किताबों के बारे में सवाल कर सकती हूँ? जरूर बड़ा बहन, पूछो जो पूछना है। की तरफ छोटी और बड़ी किताबों को क्या कहा जाता है? अल्लाह की तरफ से उतारी गई छोटी किताबों को सहीफे और बड़ी किताबों को किताब कहा जाता है। अल्लाह की तरफ से उतारी गई 4 मशहूर किताबों के नाम बताओ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। कुरान मजीद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। कुरान क्या सिखाता है? कुरान दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें सिखाता है। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम 20 पर 3 साल में नाजिल हुआ। कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। कुरान करीम में कितने सूरत हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह। अफरा-अप्पी, तुझसे फरिश्तों के बारे में पूछूंगा। ठीक है आहिल भाई, पूछिए। फरिश्ते किससे कहते हैं? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार है, उनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हुर फरिश्ते कितने हैं? मशहूर फरिश्ते 4 हैं। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हुर फरिश्तों के कुछ काम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अहकाम, किताबें और पैगामात रसूलों तक लाते थे। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम मखलूक के रोज़ी पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतज़ामात पर मुकर्रर है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मखलूक के रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर है। माशाअल्लाह। अब्दुल बासित, अगर मैं आपसे नबी के बारे में सवाल करूं तो क्या आप जवाब दे पाओगे? अब सवाल पूछे कामिल भाई, अल्लाह की तौफीक से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है। वो अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह के बंदे तक पहुंचाते हैं। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी की वालिदा का नाम हज़रत आमिना है। हमारे नबी के कितने बेटे थे? हमारे नबी के 3 बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हुम। हमारे नबी की कितनी बेटियां थीं? हमारे नबी की 4 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी का उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी की उम्र मुबारक 7 और 3 साल थी। हमारे नबी को नबूवत कब मिली? हमारे नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में कितनी साल रहे? हमारे नबी मक्का मुकर्रमा में 50 में 3 साल रहे। हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में कितनी साल रहे? हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी
नहीं, हमारे नबी के बाद कोई नया नबी हरगिज़ नहीं आएगा। क़यामत तक के लिए हमारे नबी ही आखिरी नबी है। माशाल्लाह, आप लोग इतनी सारे बातें जानते हैं। आप लोगों को देखकर हमारे दिल में भी मदरसा जाकर पढ़ने की ख्वाहिश आ गई है। बहुत अच्छी सोच है। आओ हम सब मिलकर मदरसा जाते हैं। मदरसा खत्म करके उसके बाद हम इंशाअल्लाह मिलकर खेलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1 अद्दीन रसूल तर्जुमा दीन आसान है। इत्ताक़ो जन्नत के असला जन्नत के चाबी नमाज मन वर्षा वाले का धोखा है वहाँ मुसलमान अस्सलाम कबल कना बात करने से अलैकुम बिस्मिल्लाह से सच बात इन्ना लगा वाले दुनिया अमल का दारो वाला है अतु मिलो शत्रु से बात अदान अने तहकानो पलट पले से जो किसी दूसरी चीज करते हैं वहाँ मुसलमान अन चलने को तहता चलिए वहाँ की इसका निबल उसे ऐसा करो इधर साल का फंसा इधर सुनिएगा कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगो। अफजल आमाली अल्लाह की तरफ से अमल अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल वक्त में नमाज खुशखबरी है इसके लिए उसकी कमाई बढ़ा लो ज़्यादा कर लगे अला जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम किया जन्नत सुबह और जन्नत में दाखिल नहीं होता अक्सर बनाने का सबसे अल्लाह की कला मानी का नहीं सकता जो किसी दूसरी चीज़ का खुद के लिए दावा रबी से अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी है। बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज हम आपके सामने सूरह फलक की मुख्तसर से तफसीर बयान करने के लिए खड़े हुए हैं। इस सूरे में बहुत सारी खुशियत हदीस में मिलती है। यह सूरह जादू, नजरबद, हासिदिन और हर तरह के मुस्बित बलायों से अल्लाह की पनाह में आने के लिए उतरी है। तो आइए हम इस सूरह के तर्जुमा और तफसीरें देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आप कहिए मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के मालिक की मिन शर्रि मा खलक। हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की। इस सूरे में 4 चीज़ों से पनाह मांगी गई हैं। उनमें से पहली चीज़ मिन शर्रि मा खलक, यानी दुनिया में इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हर चीज़ से पनाह मांगी गई है, चाहे इंसान और जिन्नात के ज़रिए हो या फिर जानवर और हासिद के ज़रिए हो या फिर किसी भी चीज़ के तरफ से हो। सबसे अल्लाह की पनाह मांगी गई है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। और अंधेरी रात की बुराई से जब वो आए। दूसरी चीज़ जिससे पनाह मांगी गई है वो है अंधेरी रात, इसलिए अंधेरी रात खौफनाक होता है। इस अलावा की रात की वक़्त भी जिन्नात और शैतान तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर, चोर, डाकू और दुश्मनों के हमला का होता है, इसलिए ख़ास तौर पर अंधेरी रात की बुराई से पनाह मांगी गई है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और गिरहों में फूंक मारने वालियों की बुराई से। तीसरी चीज़ जिससे पनाह मांगी गई है वो है जादू करने वाले हो। जादू करने वाले आमतौर से डोरियों में घाटी बनकर जादू के कलिमात पढ़ते हैं। जादू करने वाले मर्द औरत दोनों होते हैं, लेकिन औरतें उस काम को ज़्यादा करते हैं, इसलिए घाटियों में पढ़कर फूंकने वाले शर से ही पनाह मांगी गई है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करे। चौथी और आखिरी चीज़ जिससे पनाह मांगी गई है वो है हसद करने वाले की हसद से पनाह मांगी गई है।
حسد कहते हैं किसी की नियामत या राहत को देखकर जलना और ये चाहना कि वो चीज़ उसे नियामत जाती रहे चाहे वो चीज़ उसको मिले या ना मिले। मोहतरम दोस्तों, जिन 4 चीज़ों से पनाह मांगी गई है ये चीज़ें हर घर में और ख़ानदान में पाई जाती है। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हमारी और हमारे पूरे ख़ानदान की हिफाज़त अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने इस्लाम के चौथे रुकन के बारे में हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा आवाज़ बच्चों को कंट्रोल में करके बच्चे के बयान को सुने ताकि उनकी हिम्मत अफजाई होगी। जब शोर शराबा होता है तो बच्चों का हिम्मत टूट जाता है, तो लिहाजा अदबन गुजारिश है कि बच्चों को चुप कराएं और बयान को सुने। जज़ाकल्लाहु। हज़रात सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने इस्लाम के चौथे रुकन के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज फरमाया। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, जिसका माना इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने और रोज़ा तोड़ने वाली दूसरी चीज़ों से अपने आप को रोकना है। हर वो बालिग, मर्द, औरत जो बीमार हो, मुसाफिर ना हो, उन तमाम पर रोज़ा रखना ज़रूरी करार दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम रोज़े के बदौलत मुत्तकी बन जाओ। नीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिससे सिर्फ रोज़ेदारी दाखिल होंगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की मुँह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक खुश की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। मोहतरम सामीन, रोज़ा दरअसल खुदा पाक की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। जिस्मानी एतबार से रोज़ा जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, पेट की गलाज़त को साफ करता है, आंतों की खराबी को दुरुस्त करता है। रोज़ा मोटापे और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। वही रोज़ा हमें रूहानी एतबार से सब्र सिखाता है, बर्दाश्त की ताकत पैदा करता है, गुनाहों से बचने और उससे मुकाबला करने की सलाहियत बख्शता है। रोज़ा हमें तकवा परहेज़गारी सिखाता है, ज़बान और निगाहों पर कंट्रोल करने का तरीक़ा सिखाता है, भूखे रहकर गरीबों का दुख दर्द समझने का मौका देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूखे प्यासे रहकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने से एक गुना फरिश्तों जैसी आदत हासिल होती है और अल्लाह के सिफत के होना खाता है और होना पीता है, उसकी मुशाबहत पैदा होती है जो अल्लाह को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। यही वजह है कि एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इरशाद नकल की कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूँ। सुबहान अल्लाह। हज़रात, जैसे कि अभी हमें रोज़े के फ़वाइद सुने, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रोज़े में अपनी ज़ुबान को झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज से बचाएं, वरना हमारा रोज़ा बेकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा हमें गुनाहों से और जहन्नम से बचने का डाल है। जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़ुबान से बुरी बात ना निकाले और शोर शराबा ना करे। अगर कोई उसे बुरा भला कह दे तो बस इतना कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। और एक जगह इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके रोज़े से सिवाय भूखे कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से रात क़ियाम करने वाले ऐसे हैं जिनके सिवाय रात जागने का कुछ नहीं मिलता। लिहाजा हमें रोज़े को रोज़े की तरह रखना चाहिए।
چاہیے. نماز, تلاوت, ذکر اور اذکار کے ساتھ گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جناب مولانا حافظ محمد ابو بکر کاشفی صاحب, جناب مولانا حافظ محمد عمر کاشفی صاحب, جناب زاہد حسین اسسٹنٹ پروفیسر نیو کالج, جناب مولانا حافظ انور شریف کاشفی صاحب, اور تمام جو یہاں پر آئے ہیں اسٹوڈنٹس. میں نیو کالج میں اردو میں بھی زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, تمل میں بھی بات نہیں کرتا ہوں, so I'll switch over to English. MashaAllah, it was a great, what should I say, for me, it was a great thing to listen to the students here. The knowledge that they have exhibited, that shows the training that was given by Madrasa Ibrahim and the committee members, the teachers. So may Allah bless them all for the noble deeds that they have done. I'm really happy that a lot of importance is being given to Deen. As our Maulana Hafiz sir has mentioned, it is very important that at a young age, our youngsters, because of various challenges, negative influences that we are facing today, it is very important that at a young age, students should be taught about Deen. And the knowledge that they gain, the studies, the other thing that they acquire later, that is of secondary importance. Once, as all of you are aware, Islam gives importance to ilm, to knowledge. It is also mentioned that we have to seek knowledge from the cradle to the grave. And unless our children and youngsters have this passion for learning, once they gain this Deeni Taaleem, definitely with the discipline, with the religious fervor that they have, inshallah they will be successful in life also. Because I think all of you will agree with me that this life is short, it is temporary. It is a preparation for what has to follow later. And that's why I was also hesitating when Mr. Zahid, my colleague, informed me about this, because I'm not the right person to speak and to talk to young minds here. The reason is, first we should practice, we should follow, and we should be sincere in our deeds. Okay. Only then we can inform, we can teach others. And I'm really again very humbled that this madrasa is really doing a very great task of not only preparing the youngsters, teaching them, helping them to learn about Deen. It was very clearly visible what our children and the students exhibited their knowledge about Deen, about Quran, and about various aspects of Islam. So that is something great, and I always wish that
this madrasa will continue to inspire, to make many more students to learn, to move, go in the right path. Now, as a principal of New College, where we have right from UG, PG to even research, we have roughly around 6,500 students. Majority of them are Muslims. One thing I would like to mention that, yes, many of our students are also on the right path. Okay, along with their studies, the college is also facilitating that students should know about Deen. We have Deeniyat classes and all that. But what worries me is that the negative influences that many youngsters are now subject to. And unfortunately, our community, our youngsters particularly, are not giving much importance to studies. Good education goes along with Deeni Taaleem is important for them to achieve higher positions in life and also contribute to the community and to the society. And there is a lot that we should do and we can do for the benefit of our community. And I am sure with such noble efforts which the madrasa is doing, and many of the learned members who are present here, we should set the right example to our children and to the youngsters for a better future and make them realize that it is important for them to follow the ideals of Islam. Thank you and all the best. मदरसे इब्राहिम में पिछले 7 महीने से पढ़ रहा हूँ. बचपन में कुरान शरीफ पढ़ के छोड़ दिया था और अब तजदीद के साथ सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा हुर्फ का इहज़ार किस तरफ से करना है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिखाया. अब 30वां पारा शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़े छोटे सूरे हिफ्ज़ किया. दिन की बहुत से बातें सीखी, कैसा सही तरीके में नमाज अदा करना है, कब सजदे शुरू करना है और बहुत कुछ सीखा है इस मदरसे में. और हमारे उस्ताद अनवर हजरत आके बहुत ईजी तरीके से हमको बोल को देते हैं और हमें अच्छा समझाते हैं और हमारे लिए बहुत सा वक्त उनका ज़ाहिर करते हैं इंशाअल्लाह. और तमाम हजरत से गुजारिश है जो कुछ सीखना चाहते हैं 9 के बाद आके हमारे मदरसे इब्राहिम में ज्वाइन करके सीख लीजिए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم حاضرین عظام، سامعین کرام اور علماء کرام اور جتنے مہمانان خصوصی حاضر ہوئے ہیں، سارے حضرات کو میں اپنی طرف سے دوسری مرتبہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ حضرات ذہن نشین کر لیں، غور سے سن لیں. سب سے پہلی بات دین. ہم اس لفظ کو بارہا سنتے آ رہے ہیں. کئی گہرے معانی کا یہ لفظ شامل ہے. دین، اللہ رب العزت اس دین کا مالک ہے. اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنْ يُشَاقَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. کوئی دین
अगर मशक्क़त में डालना चाहता है वो खुद मशक्क़त में पड़ जाता है, दीन उसके ऊपर गालिब आ जाता है। वो बंदा जो दीन को मशक्क़त में डालना चाहता था वो मगलूब हो जाता है। ये दीन की खुसूसियत है। दीन बहुत ही आसान है, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, जो आदमी साइकिल नहीं चला पाता। साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए? 2 टांगों का होना, 2 पैरों का होना सही सालिम ज़रूरी है। अगर किसी आदमी के अंदर पैर नहीं है, हाथ भी कटा हुआ है, वो आदमी भी सही 100% दीन पर चल सकता है, इतना आसान। दीन इल्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्या इल्म? नॉलेज, जानकारी, उस दीन की जानकारी। वो इल्म अदब के साथ जुड़ा हुआ है। मल्ला अदब लहू फला इल्म लहू, जिसके अंदर अदब नहीं है, तमीज़ नहीं है, उसको इल्म कभी नहीं आएगा। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। यहाँ माशाअल्लाह उलमा भी तशरीफ़ लाए हैं और मालदार हजरात भी, और जो है बड़े बड़े ओहदे वाले पढ़े लिखे हजरात भी यहाँ हाजिर हुए हैं। दोनों हजरात के लिए मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। उलमा हजरात के लिए इस्तिग़ना का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़रूरतों को, अपनी हाजतों को अल्लाह के अलावा किसी से हमें बताने की, रखने की, पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से बड़ा मालदार कोई नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा सुनने वाला और मुश्किल कुशा कोई नहीं। सिर्फ पैसों ही से मसला हल नहीं होता, परेशानियां भी है, तरह तरह की परेशानियां है। उसको हल करने वाली ज़ात अगर है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं। गरीब मालदार सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह एक ज़ात ऐसी है जो समद है, बेनियाज है। अल्लाह के अलावा सब मोहताज हैं, हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं। मालदारों को चाहिए अहले इल्म को ढूंढ करके, तलाश कर करके उनकी खिदमत किया करें, उनका एहतराम किया करें। उनके एहतराम के बगैर तुम्हारा दीन कंप्लीट नहीं है। उलमा के एहतराम के बगैर अवाम का दीन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। वहाँ तुम जो है पैसा खर्च नहीं करोगे, डॉक्टरों के पास जाएगा, मुकद्दमात में जाएगा, पता नहीं क्या किया, रास्तों में तुम्हारा पैसा जो है ज़ाय होगा, सुकून नहीं होगा, चैन नहीं आएगी, परेशान रहोगे। उलमा का एहतराम करना मालदारों के ऊपर लाजिम है, फर्ज है। इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराबर किया है। उलमा हजरात जो है अपनी खिदमत में, अपनी दीनदारी में, अपने इल्म वक़ार में वो जमे रहें, आगे बढ़ें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, तवक्कुल करके। उलमा और मालदारों को चाहिए उनकी खिदमत करें, उनकी ज़रूरतों को अपनी तरफ से उसको पूरा करते रहे, उनकी खिदमत करते रहे, उनकी इज्जत करते रहे और उनका एहतराम करते रहे। उसी में दोनों की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसी में खैरियत रखा है, खैर रखा है। इस दीन को, अदब को सिखाने की जगह मदरसा। मदरसा क्या है? दीन का, इस्लाम का फोर्ट है, किला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ही बनाया।
पूरी दुनिया में मदरसे के अंदर जो ताकत है वो किसी भी इदारे के अंदर वो ताकत नहीं है। अगर कोई आदमी इस्लाम से, इस्लामी तहजीब से अगर डरता है, खौफ ज़दा है, इन मदरसों की वजह से वो खौफ ज़दा है। इसके लिए पूरी दुनिया में रिसर्च होती है, इसराइल से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, लंदन से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, हर जगह ये तलाश करते हैं, इस फिक्र में लगे रहते हैं कि मदरसा किस चीज़ का नाम है। हम इस इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। महबत वही जिस जगह पर, जिस मुल्क पर नाजिल हुई है, उस जगह को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, वहाँ के बाशिंदों को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसा हम इशारा करेंगे वैसा वो नाचेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन बस तब्दीली नहीं हो रही है। दीन रोज बरोज जो है बढ़ता जा रहा है, तरक्की होती जा रही है। ये है खासियत हमारे हिंदुस्तान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया है कि उलमा एक तरफ दीन की खिदमत के लिए, मदारिस के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा दिए, कुर्बान कर दिए, और जो है यहाँ के उमरा, यहाँ के मालदार तबका माशाअल्लाह जो कुछ भी हो, आधा पेट जो है खाना खाया और बच्चों को खिलाया, जो भी बचा हुआ है उसको मदरसे के नाम पर खर्च कर दिए, चंदा दे करके उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी बड़ी ताकतें और दुश्मनान इस्लाम इस बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतने मदारिस हैं, अरबों खरबों का खर्चा हो रहा है, ये कहाँ से ये पूरा हो रहा है, कौन दे रहा है? उनकी समझ में नहीं आ रही ये बात। इसके पीछे अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। इसलिए दोनों हजरात अपनी जिम्मेदारी को मतलब जो है उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दीन जो है सही चलता रहेगा। हम भी कामयाब होंगे, हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाबी होगी, हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसलिए हम दोनों मिलकर के इन मदारिस को चलाना हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तालियां मत बजाइए, ये गैरों का तरीका है। माशाअल्लाह बोलिए, ये जो है ये यही सही तरीका है। यहाँ जो है मैं पहले ही बोलने वाला था, तालियां बजाना इस्लाम के खिलाफ। मदरसा सही इस्लाम दीन सिखाने की जगह, यहीं से हम जो है गलत तरीके को हम सीखेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा। इसलिए जो है तालियां मत बजाइए, माशाअल्लाह कहिए। दूसरी बात, स्टेज पर किसी जो है मुराहिदा औरत को, बालिग बच्चियों को खड़ा करना, ये उनकी आवाज़ को मर्दों को सुनाना, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। इसमें भी एहतियात कीजिए। दो तरह की इस्लाह है, तो इंशाअल्लाह मैं उसको भी वाज़ेह कर दिया। दोनों की इस्लाह कीजिए, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। न्यू कॉलेज के प्रिंसिपल साहब असरा शेख साहब को कोशिश की जाती है। अल्लाह माशा अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। उसके बाद मौलवी मोहम्मद उबैद साहब कासिमी इख्तिशार कोशिश की जाती है। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद मौलवी हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब काशिमी की शान कोशिश की जाती है।
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हमारे सबसे पहले हमारे मस्जिद के गुलाम हुसैन मस्जिद जो सालों से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी खिदमत दे रही है, दीनी अंजाम दे रही है, जो इंडिया के सबसे बड़े मार्केट रेडियो मार्केट के बीच में सेंटर बनकर बैठे हमारे लिए, उसमें 1984 से एक शख्स खिदमत करता है इस कमेटी में, मतलब जो 40 पर 2 साल से मस्जिद की कमेटी में खिदमत करता आ रहा है। और मस्जिद में बहुत सी कमेटी बदल गई, प्रेसिडेंट्स बदल गए, सेक्रेटरी बदल गए, सब बदल गए, फिर भी वो शख्स नहीं बदला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1993 से गुलाम हुसैन मस्जिद की इलेक्शंस फॉलो अप करने को हूँ। जब से अल्हम्दुलिल्लाह जो शख्स को मैं बुलाने वाला हूँ, वो शख्स जिस टीम में करता वो टीम में अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आई है, और जो अनर पोस्ट में आया उसमें भी वो टीम मेंबर ही का आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाबा के ज़माने में भी नो थे, अब के प्रेसिडेंट के ज़माने में भी नहीं, इसके पहले के जो सेक्रेटरी थे उनके बाबा के ज़माने में, और मस्जिद सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह का इनकी बहुत खिदमत।
दरअसल यहाँ स्टेज पर हमें जो खड़ा किया गया है, एक एतबार से शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो हमारे सामने आइमाए किराम हैं, जिनकी खिदमत हमारी उम्र के बराबर है, जितनी हमारी उम्र है उनकी खिदमत है। हमारे वाला मस्जिद के इमाम साहब हैं, मौलाना हुसैन साहब हैं, बकरी मस्जिद के कारी साहब हैं, कारी सिकंदर साहब हैं, मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं, दीगर भी आइमा, नाम तो जहन में नहीं है, लेकिन माशाल्लाह साल हर साल से इनकी खिदमत रही हैं। दरअसल आज का ये प्रोग्राम 2-3 चीज़ों का संगम है, 2-3 चीज़ों को मिला दिया गया है। बच्चों के भी प्रोग्राम हैं और मस्जिद के मुतवल्लियान ज़िम्मेदारान की भी एजाज़ और उनकी शालपोशी हो रही है, और उसी के साथ साथ आइम्मा हज़रात को भी ज़हमत दी गई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जब हुक्म मिला है कि कुछ आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है, यहाँ पर स्टेज में माशाल्लाह न्यू कॉलेज के प्रोफेसर इरशादुल्लाह साहब हैं, और इस मदरसा इब्राहिम के जाहिद साहब जो अपने वालिद साहब के नाम से मदरसा इब्राहिम रखे हैं, टेलीफोन इब्राहिम साहब के नाम से मशहूर थे, उनकी भी खिदमत तकरीबन 40 साल रेडियो मार्केट में रही है। और इस जलसे के रूह रवा मौलाना अनवर साहब, दरअसल ये मेरे दोस्त हैं, इनके वालिद साहब नियामतुल्लाह साहब मरहूम, इनका ऑफिस था इधर इलिस्टी रोड के अंदर, सोशल वर्क थे लेकिन उलमा से मोहब्बत करते थे। और फिर एक और दोस्त है हमारे मौलाना अबू बकर साहब काशिफी, वो भी स्टेज पर जलवा फरोज़ है। तो लिहाजा मुख्तलिफ और मस्तूरात की पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, तो जहन बिल्कुल गायब है कि क्या बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं, लेकिन मुझे तो बस यही कहा गया है कि अइम्मा हज़रात के उनकी शान में, उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से कुछ लबकुशाई करूं। जहन तो खाली है। ऐसे एक आयत याद आ रही है, दरमियान में मौलाना वहीदुद्दीन साहब हजरत, ये सब हमारे बड़े हैं माशाल्लाह, हमारी जितनी उम्र है उनकी उतनी खिदमत, उनकी सर्विस है। दीनुल्लाह हजरत की जो बात से मैं भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तालियां बजाने का जो ये था, मेरे दिल की बात हजरत ने अपनी ज़ुबान से कह दी। जो भी बच्चों का प्रोग्राम है उसका एजाज़, उसके लिए हौसला अफजाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से किया जाना चाहिए। माशाल्लाह हजरत ने उस जानिब इशारा फरमाया, हजरत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आयत कुरान करीम की जहन में है, आमतौर पर जुमे के दिन फजर की नमाज में पढ़ी जाती है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व कानू बिआयातिना युक़िनून। अगर अइम्मा का लफ्ज़ कुरान करीम की इस आयत में अगर आप देखें और आपकी खिदमत का इससे मुवाज़ना करें तो ये आयत बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मौजू है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, कि हमने ऐसे पेशवा खड़ा किए जो लोगों को राह रास्त की तरफ लेकर आते हैं। बिअमरिना, हमारे हुक्म से, लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, उनका सबर और जिस अज़म और इस्तिक़लाल के साथ वो काम करते। दरअसल ये पस मंज़र बनी इसराइल के सिलसिले में है, लेकिन अइम्मा हज़रात पर यह आयत बिल्कुल आज के मजलिस के लिहाज से फिट होती है। लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून, और अल्लाह की आयतों पर पूरे तरीके पर वो क्या है, यकीन रखते हैं। कुरान करीम की आयत है। और इसी तरह एक हदीस जहन में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दीका फइन्नहु युक़िज़ु लिस्सलाह। आप मुर्ग को गाली ना दें इसलिए कि वो नमाज को जगाती है। मुर्ग जानते हैं, मुर्ग सुबह सुबह अपनी जो आवाज़ निकालती है तो ये गोया नमाज के लिए जगाती है। हमें सिटी के अंदर तो वो माहौल नजर नहीं आता है। देहातों के अंदर सुबह सुबह देखे मुर्ग की आवाज़ गूंज रही होती है। बाज़ लोग रिंग टोन के अंदर, अलार्म रिंग टोन में मुर्ग की आवाज़ रखते हैं, लेकिन इसका तज़किरा हमें हदीस में मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्ग को गाली मत दो इसलिए कि वो नमाज को जगाती है।
एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा समिअतुम सियाहद्दीकी फस्अलुल्लाह मिन फज़ली फ़इन्नहा रअत मलकन। जब मुर्ग आवाज़ करने लगे तो उस वक़्त पर तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी अल्लाह से उसके फजल को मांगो, इसलिए कि मुर्ग जब आवाज़ करता है तो वो फरिश्तों को देखकर आवाज़ करता है। इसके भी मुकाबिल कुत्ता और गधा आवाज़ करता है तो शैतान को देखकर आवाज़ करता है। तो मैं इस हदीस से ये बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुतवल्लियान हजरात भी हैं। देखो, आज आइम्मा हजरात का जो मकाम और मर्तबा है, मुअज़्ज़िनीन का जो मकाम और मर्तबा देना चाहिए, अल्लाह के नबी ने यहाँ मुर्ग को गाली देने से इसलिए मना फरमाया कि नमाज को जगाता है दिन में 1 मरतबा। वो मुअज़्ज़िनीन जो रोज़ाना 5 मरतबा मस्जिद के मीनारों से अल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं, आइम्मा हजरात मस्जिद के मेहराब और मिंबर की जीनत बनकर कुरान करीम की आयत की तिलावत करते हैं। अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आइम्मा हजरात शुरू अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान करीम लोगों को सुना रहे होते हैं। अपनी तिलावत के जरिए से बड़ा नफा लोगों को पहुंचा रहे होते हैं। इसका एहसास होना चाहिए कितना बड़ा ये अहम काम है कि कुरान करीम सुना रहे हैं। आपकी नमाजें जमात के साथ हो रही हैं, आपको रमज़ान में कुरान तरावी में सुनाया जा रहा है, तो कितना बड़ा अहम काम इमाम हजरत के जानिब से होता है। और आइम्मा हजरात, देखो मैं बिल्कुल साफ साफ बात करता हूँ, हालांकि आइम्मा दीन के हमारे पेशवा हैं, हर एतबार से हमें उनको आगे रखना चाहिए, लेकिन अब लोग समझते हैं ज़्यादातर लोग देकर इमामों के 3 काम हैं। इमामों के कितने काम हैं? 3 काम हैं। एक है जनाजा पढ़ाना इमामत से हटकर, दूसरा निकाह पढ़ाना, और एक काम रमज़ान के अंदर तरावी हो, इमामत हो, जो भी हो। देखो आप जो मुतवल्लियान हजरात हैं, मस्जिद के जिम्मेदार हजरात हैं, देखो कभी इन कामों के अंदर किसी इमाम ने फीसा लिया हो, किसी इमाम का इसमें देर हुई हो, आप हजरात के आने से पहले इमाम मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, निकाह के अंदर अभी दूल्हा आ नहीं रहा होता है, इमाम साहब दफ्तर लिए खड़े रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दूल्हा आ गया इमाम नहीं आए, घंटों इंतजार इमाम साहब दफ्तर रखकर करते हैं, फिर जाके जब दूल्हा तैयार होकर आता है। जनाजे की नमाज है, कहीं ऐसा नहीं सुना गया कि कोई जनाजा इसलिए बगैर नमाज पढ़ा दी गई कि इमाम न मिला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी खिदमत आइम्मा हजरात के जानिब से ली, तो लिहाजा आइम्मा हजरात की हमें कदर करनी चाहिए। जैसे मैं बताया कि एक आइम्मा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बरसों सर्विस है। दुनियादार 30 साल के किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं। अब फिर रिटायरमेंट की हालत घर के अंदर क्या होती है देखा है? जितना इंसान दुनिया में लगता है, दिन के गुजरने के साथ साथ उसकी इज्जत कम हो जाती है, लेकिन जो दीन में लगता है उसकी इज्जत अल्लाह पाक और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कोई बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले आते हैं, उनकी दाढ़ी सफेद और चुकी होती है, लोग अपने के पास लेकर आते हैं, कहते हैं हजरत हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दें, आपका बचा हुआ पानी हमारे बच्चे को पिला दें, ताकि आपका कुछ रूहानी आपकी ताकत हमारे बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाए। ये आइम्मा, ये उलमा जो दीन के लिए अपनी जिंदगियां खपा रहे होते हैं, अल्लाह पाक दिन के गुजरने के साथ साथ उनकी इज्जत को बढ़ाते चले जाते हैं। आइम्मा हजरात का मकाम और मर्तबा वक्त के बादशाह से भी ज्यादा बड़ा हुआ होता है। किताबों में लिखा है कि खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इमाम मुहद्दिसीन अब्दुल्ला इब्न मुबारक का खुरासान से रिका शहर के अंदर आना हुआ। उनके इस्तकबाल के लिए 30,000 लोग जमा हुए। हजरत ने जब छींका और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो उसके जवाब में इतने बड़े मजमे ने जब यरहमुकल्लाह कहा, तो सारा
शहर के अंदर लफ्ज़दारी हो गया। जो हारून रशीद की बीवी थी मलिका जुबैदा खातून, उसने दरीचा खोलकर देखा कि ये क्या हो गया, पूरे शहर के अंदर खलबली कैसे मच गई। लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक के छींकने पर और उनके अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर लोगों ने जवाब दिया है, तो पूरा शहर लरज उठा है। तो फिर बीवी ने खलीफा हारून को ताना दिया, तुम भी कैसे बादशाह हो, ये हारून रशीद तुम कैसे बादशाह हो, ये जब छींके हैं तो इनके जवाब ने तो सारा बस्ती गूंज उठा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अइम्मा हजरात को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। हमें अइम्मा हजरात की कदर को पहचानना चाहिए। देखो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में रखी है, इल्म के साथ जुड़ने में रखी है। ये मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो आदमियों का तज़किरा हुआ। रिवायात में आता है अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन वल आखिरु आलिमुन। उनमें एक आबिद था, दूसरा आलिम था। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी इन दोनों में क्या फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक अदना आदमी के ऊपर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने फरामीन हैं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून व अहलस समावाति वल अर्दीन हत्ता अन-नमलता फी हुजरिहा व हत्ता अल-हूत ला यसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के फरिश्ते यहाँ तक के सुराख के अंदर चूंटियां और पानी के अंदर मछलियां, ये तमाम के तमाम उस मुअल्लिम उस आलिम के लिए दुआएं करती हैं जो लोगों को खैर और दीन सिखाता है। ये उसकी फजीलत है। तो लिहाजा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम इनका क्या एजाज कर सकते हैं, हम इनकी क्या शान पोशी कर सकते हैं। अल्लाह पाक इनका जो एजाज करेंगे कल क़यामत के दिन, दुनिया लोग रश खाकर देखेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-मुअज़्ज़िनून अतवलु अनाक़न यौमल क़ियामह, मुअज़्ज़िनीन कल क़यामत के दिन ऊंची गर्दन वाले होंगे। ऊंची गर्दन का मतलब ये नहीं कि उनकी गर्दन लंबी हो जाएगी, बल्कि फरमाया कि अल्लाह ने ऐसे मकाम और मिंबर पर खड़ा करेंगे, लोग उनको देखते रह जाएंगे। आज तो मुअज़्ज़िन को हकीर समझते हैं ना, जो आया बगदिया इसलिए कहते हैं जो जिसका जहां नहीं चलता है वो आकर मस्जिद में चलाता है। जिसका, मैं और मोटी जुबान में अगर कहूँ, जिसकी जोरू जिससे नहीं डरती है वो आकर मस्जिद में इमाम को डराता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अइम्मा का क्या मकाम है, मुअज़्ज़िनीन का क्या मकाम है, अल्लाह ने कैसा उनका मकाम ऊंचा फरमाया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने हमें इल्म के साथ जोड़ा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा वो अल्लाह के नबी के बल्कि अंबिया के वारिस हैं। एक और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उलमा यानी एक आयत कुरान करीम का सीख लेना 100 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। आप रात भर इबादत करें, एक आलिम ईशा की नमाज जमात से पढ़ाता हो और फजर जमात से पढ़ाता हो, तो आप उसके मकाम को कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने वो मकाम उन्हें अता फरमाया। एक और इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक इल्म का मसला सीख लेना तुम्हें 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। आप तहज्जुद पढ़े, जल्दी पढ़े। लोग एतराज करते हैं भाई इमाम साहब बिल्कुल आखिर में आते हैं, जमात खड़े होते हुए आते हैं। लोगों को एतराज है ना, ऐसा ही एतराज एक साहब को हुआ। एक मस्जिद वाले से मुतवल्ली से जाकर शिकायत की गई, हजरत हमारे इमाम साहब बिल्कुल आखिर वक्त में हारन बजाते हुए आते हैं और सीधे मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि हम जो तनख्वाह देते हैं वो फर्ज की तनख्वाह देते हैं, नफिल की नहीं देते हैं। यानी हम नफिल नहीं पढ़ेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं पूछेंगे। चलो भाई इंशाअल्लाह उलमा हजरात के हवाले से कुछ बातें जो जहन में थी मैंने अर्ज किया। दरअसल उनके एजाज में ये मजलिस है और साथ में बच्चों को भी माशाअल्लाह जोड़ दिया गया। बच्चों ने अच्छे प्रोग्राम पेश किए और
اور اسی طرح مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی ماشاءاللہ حاضر ہوئے. اللہ پاک آپ کے آنے کو. اور مولانا انور صاحب جیسے میں نے کہا کہ ان کے والد صاحب نعمت اللہ صاحب ایک سوشل ورکر تھے اور ان کا جذبہ تھا. حضرت کی مسجد ہی میں ظہر کی نماز, حالانکہ 2 بجے والا مسجد میں نماز مشہور ہے, 2 بجے ظہر کی نماز ہے, لیکن میں کچھ جلدی پہنچ گیا. وہاں وضو کر رہا تھا تو ان کے والد صاحب مرحوم میرے سے ملاقات ہوئی. بولے حضرت کہاں ہے؟ بولا میں کاشف الہدا میں پڑھتا ہوں. میں 1:30 بجے نماز سمجھ کر مسجد جلد آ گیا. حضرت نے کہا, ان کے والد صاحب نے کہا میں مسلکاً اہل حدیث ہوں, لیکن مجھے آپ کا رویہ پسند آیا کہ نماز سے اتنی دیر پہلے آ کر آپ مسجد میں وضو کر رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, تو میں بھی اپنے بچے کو آپ کی طرح بناؤں گا. چنانچہ آگے انہوں نے ہمارے سے مشورہ کیا. پھر مولانا انور صاحب کاشف الہدا میں پڑھے, ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے, ایک ساتھ آتے جاتے رہے. ماشاءاللہ آج میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ان کی روح قبر کے اندر خوش ہوگی کہ ماشاءاللہ ان کی اولاد آج اتنا بڑا کارنامہ کر رہا ہے, مدرسہ چلا رہا ہے. اور اسی طرح عشاء کے بعد بڑے لوگوں کے لیے بھی ماشاءاللہ تعلیم کا نظم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. اور یہ ائمہ حضرات کے سلسلے میں جو اعزاز کا یہ نشست ہے, دراصل ان سے زیادہ سینئر بزرگ لوگوں کے ہاتھوں سے ان کا اعزاز ہونا چاہیے, لیکن کبھی چھوٹوں کے ذریعے سے بھی کیا ہے کچھ کام ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا انی فداک ابی و امی یا سعد. حالانکہ حضرت سعد صحابی ہے, اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کہ اے سعد تیر برساؤ کافروں پر, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی چھوٹوں کے ذریعے سے بھی کبھی کچھ کام ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کے اعزاز میں جو مجلس ہے انشاءاللہ اب آپ کے کیا ائمہ کرام کے نام پیش کیے جائیں گے, بلائے جائیں گے. تو آپ اسٹیج پر آنے کی زحمت فرمائیں. اور پھر ہمارے ارشاد اللہ صاحب ہیں, پرنسپل ہیں نیو کالج کے, ان کے ہاتھوں اور دیگر ائمہ کے ہاتھوں انشاءاللہ آپ اپنے اعزاز کو لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو بھی قبول فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
तो हमारा जो मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दीनियात, कुरान तजवीद से और तफसीर, ये सब चीज़ यहाँ पर चल रहा है। आइंदा भी हमारे कई अज़ाइम हैं हमारे मदरसे के। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तजवीद के साथ माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, आगे ये बच्चे इंशाल्लाह आप हिफ्ज़ भी शुरू करेंगे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरे याद कर रहे हैं, आगे चलकर इनका हिफ्ज़ क्लास भी शुरू होगा। और इसी तरह अगले साल से हमारा इरादा है कि औरतों मसूरात के लिए भी यहाँ पर मदरसा शुरू किया जाए, इंशाल्लाह वो भी शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे अज़ाइम हैं, तफसीर कुरान का भी शुरू करने का हमारा इरादा है, तर्जुमा कुरान का भी शुरू करने का इरादा है। तो हमारे जितने भी आइम्मा हैं उन सब की दुआओं से, मेहमान खुसूसी की दुआओं से हमारे अज़ाइम और भी बढ़ेंगे। आप लोगों की हौसला अफजाई हमें बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे दुआ की दरख्वास्त भी है कि आप हमारे मदरसे के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए दुआ कीजिए। ख़ास तौर पर मोहम्मद जाहिद साहब, प्रोफेसर जाहिद साहब जो तमाम मीटिंग अरेंज किए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उलमा से जो मोहब्बत है उसको अल्लाह कबूल फरमाए। ये काम जो इन्होंने शुरू किया आइम्मा की जो इज़्ज़त अफजाई का, ये इसी तरह से आगे चले, ये सिलसिला बड़े पैमाने पर हो। ये आइम्मा है ही ऐसा सरमाया जिनको हम सराहें, जिनकी खिदमत को हम दिन रात सराहें तो भी हमारी ज़ुबान क्या है उसका हम अदा नहीं कर सकती। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, हमारे जलसे को कबूल फरमाए और हमारे अज़ाइम में हमें कामयाबी अता फरमाए। जिस संजीदगी के साथ आप बैठे थे आखिर तक इसी तरह से बैठे। अभी दुआ के साथ इंशाल्लाह हमारा मस्जिद का इंतज़ाम होगा। मेहमान खुसूसी मौलाना उमैर साहब की दुआ से इस मस्जिद का इंतज़ाम होगा। और दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका जो मिल गया होगा आशाइया, आप खामोशी के साथ उठकर चले जाएं इंशाअल्लाह। बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि स्टूडेंट्स, मदरसा इब्राहिम के जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इंशाअल्लाह हमारा मदरसा पीर के दिन एक दिन रहेगा, सब बच्चों को आना पड़ेगा। प्यार से मेरी गुजारिश है, हमारे मदरसे में रमज़ान का महीना चूँकि छुट्टी का रहेगा तो हमारे मदरसे में अमल चार्ट रखा गया है। अमल चार्ट सब बच्चों को दिया गया है। उस अमल चार्ट में रमज़ान के मुनासबत से कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करने के लिए दी गई हैं। वो अमल चार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, अगर कोई इसे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। उस अमल चार्ट में रोज़ाना 5 वक्त नमाज के साथ चंद चीज़ें ऐड की गई है। एक महीना बचाऊँगा, चंद चीज़ें हैं जो गुड डीड्स के नाम पर ऐड किए गए हैं। रोज़ा रखना, रोज़ा रख के बच्चा, पेरेंट्स इसका टिक करेंगे। ये जो भी अमल बच्चा करेगा पेरेंट्स इसे टिक करेंगे कि बच्चा रोज़ाना रोज़ा रखेगा और तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करेगा। जो बच्चा करेगा उसका टिक किया जाएगा। रोज़ाना कुरान करीम दीनियात कुछ टाइम के लिए पढ़ेंगे। फर्ज नमाज के साथ सुन्नत और नफिल नमाजों को भी पाबंदी करेंगे। हर नमाज के बाद जो तस्बीहात है वो बच्चे पढ़ेंगे और टिक करेंगे। टीवी, मोबाइल फ़ोन और दूसरे एंटरटेनमेंट की चीज़ों से अपने रोज़े को ख़राब नहीं करेंगे। रोज़ाना कुछ पैसा अल्लाह के नाम से किसी गरीब को देंगे। ये बच्चों के अंदर हमारा सदका देने का सिफत आए इसलिए रखा गया है। आप पेरेंट्स इस पर गौर करें, बच्चों के अंदर एक आदत लाए, इंशाअल्लाह बच्चे सदका देने के वो आकर आदि बनेंगे और उम्मत में उनके ज़रिए से ये गरीबी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। इफ्तारी के कामों में पेरेंट्स की हेल्प करें, रोज़ाना इफ्तारी में खूब दुआ मांगे, हर काम में सुन्नत को फॉलो करें, तरावी की नमाज की पाबंदी करें। ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को दी गई हैं और भी हैं जो है जिसको ज़रूरत है ले जाएँ। अब मौलाना उमैर साहब की दुआ से हमारे इस मस्जिद का इंतज़ाम होगा। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفرنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم خطاؤں سے درگزر فرما اے مولا کریم یا اللہ اس مجمع کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما یا اللہ ان بچوں کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن و تابناک بنا یا اللہ انہیں دنیا میں ترقیات سے نواز دے
اے مولا کریم ان بچیوں کے بھی مستقبل کو روشن اور تابناک بنا، اے اللہ ان کے نصیبے کو بہتر سے بہتر بنا، اے مولا کریم جو ائمہ حضرات آئے ہیں اللہ ان کا صلہ، اے اللہ تو نے اپنے شاعر شان نصیب فرما، یا اللہ ان حضرات کے خدمات کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ان کے سیاحت کو درگزر فرما، یا اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز دے، اے مولا کریم یا اللہ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما، آنے والا رمضان ہمیں مقدر فرما، یا اللہ اس رمضان میں اعمال نیکی طاعات کے ساتھ یا اللہ اس رمضان کو یا اللہ ہمیں یا اللہ اس رمضان کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق و رحمت فرما، یا اللہ اس رمضان کے سحری اور افطاری بابرکت اوقات کی قدردانی کی توفیق و رحمت فرما، یا اللہ ہمیں جو حج بیت اللہ زیارت مدینہ کی تمنا رکھتے ہیں اللہ انہیں زندگی میں بار بار نصیب فرما، اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ خصوصاً یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ مرحوم ابراہیم صاحب کے نام سے اللہ چلایا جا رہا ہے، یا اللہ اس کا ثواب یا اللہ انہیں پہنچا دے، یا اللہ ان کی روح کو یا اللہ ان کے لیے ذخیرت بنا دے، اللہ اس مدرسے کو یا اللہ دن و دن ترقیات سے نواز دے، یا اللہ ان کے اساتذہ کرام کے علماء کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد